वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 3, entitled as Krishna is the source of all incarnations, and the text number 43. Very important verse. Krishna Swadham Upagate Dharma Jnanadhibhi Saha. कृष्णस्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ दृष्टदशामेश पुराणार्कोऽधुनोदित। कलौ नष्टदशामेश पुराणार्कोऽधुनोदित। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Translation. This Bhagavad Puran is as brilliant as the sun, and it has risen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Puran. Purport. Lord Sri Krishna has his eternal dham or abode, where he eternally enjoys himself with his eternal associates and paraphernalia. And his eternal abode is a manifestation of his internal energy, whereas the material world is manifestation of his external energy. When he descends to material world, he displays himself with all paraphernalia in his internal potency, which is called Atma Maya. In Bhagavad Gita, the Lord says that he descends by his own potency, Atma Maya. His form, name, fame, paraphernalia, abode, etc. are not therefore creations of matter. He descends to reclaim the fallen souls and to re-establish codes of religion which are directly enacted by him. Except for God, no one can establish the principles of religion. Either he or a suitable person empowered by him can dictate the course of religion. Real religion means to know God, our relationship with him, and our duties in relation with him, and to know ultimately our destination after leaving the material body. The conditioned souls who are entrapped by material energy hardly know all this principle of life. Most of them are like animals engaged in eating, sleeping, fearing and mating. They are mostly engaged in sense enjoyment under the present pretension of religiosity, knowledge or salvation. They are more blind in the age of quarrel or Kali Yuga. In Kali Yuga, the population is just a royal addition of animals. They have nothing to do with spiritual knowledge or godly religious life. They are blind that they cannot see anything beyond the jurisdiction of the second mind, intelligence or ego. But they are very much proud of their advancement in knowledge, science and material prosperity. They can risk their lives to become a dog or a hog just after leaving the present body, for they have completely lost sight of the ultimate aim of life. The personality of Godhead Sri Krishna appeared before us just a little prior to the beginning of Kali Yuga, and he returned to his eternal home practically at the commencement of Kali Yuga. While he was present, he exhibited everything by his different activities. He spoke the Bhagavad Gita specifically and eradicated all pretentious principles of religiosity. And prior to his departure from this material world, he empowered Sri Vyasadeva through Narad to compile the message of Srimad Bhagavatam, and thus both the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam are like torch bearers for the blind people of this age. In other words, if men in this age of Kali want to see the real light of life, they must take to these two books only, and their aim of life will be fulfilled. Bhagavad Gita is a preliminary study of the Bhagavatam, and Srimad Bhagavatam is summum bonum of life. Lord Sri Krishna personified must be like Lord Sri Krishna personified. We must therefore accept Srimad Bhagavatam as the direct representation of Lord Krishna.
one who can see Srimad Bhagavatam can also see Lord Shri Krishna in person. They are identical. हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम कक्षा में बेस्ट में। तो आज का जो श्लोका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णा इज वेरी, कृष्णा जब आते हैं इस भौतिक जगत में तो वो किस चीज के लिए आते हैं, वो कृष्ण स्वयं बताते हैं हमें श्रीमद् भगवद गीता के अंदर। कृष्णा बोलते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तीन कारण भगवान बताते हैं कि जिनकी वजह से मैं इस भौतिक जगत में आता हूँ। पहला है परित्राणाय साधुना, साधु भक्त ब्राह्मण इनका परित्राण करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको प्रेरणा देने के लिए, ठीक है, इनके साथ आदान प्रदान करने के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृता, बाद में जो छोटे मोटे इधर उधर राक्षस लोग रहते हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण, उनको थोड़ा बहुत मारता हूँ कृष्ण है। उसके बाद में धर्म की संस्थापना करता हूँ, स्थापना करता हूँ। सतयुग में कौन सा धर्म है, त्रेता में कौन सा है, द्वापर में कौन सा है, कलयुग में कौन सा है, ये भगवान उस समय आके हमें बता के चले जाते हैं, ठीक है। तो कृष्ण इस भौतिक जगत में आने के बाद अभी द्वापर युग में कृष्ण चले गए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अभी तक आए नहीं। उसके बीच में जो पीरियड है तब जितने भी साधुगण हो गए हैं उनको पता है कि कलयुग स्टार्ट हो चुका है और कलयुग के जीवात्माओं के सारे लक्षण जो है वो सारे दिख रहे, अनपैलेटेबल, बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे जीवात्माओं के उद्धार के लिए इस भौतिक जगत में भगवान क्या छोड़ के गए, क्योंकि कृष्ण आते तो कृष्ण के साथ सारा आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी निकल जाता है। आध्यात्मिक ऐश्वर्य में धर्म और ज्ञान ये दोनों भी आते हैं। आप बोले कि भगवान तो आए धर्म की संस्थापना करने के लिए और यहाँ पे बोल रहे भगवान चले गए तो उनके साथ धर्म भी चला गया, तो कैसे चलेगा। परंतु कृष्ण धर्म का स्वरूप रख के चले जाते हैं और उसकी चर्चा इस श्लोका में की गई है कि भगवान भले चले गए, उनके साथ ऐसा लगता है कि धर्म ज्ञान तपस्या ये सत्य ये सब कुछ चला गया है, परंतु भगवान जाते हैं तो साथ में कुछ ना कुछ तो इस भौतिक जगत में जीवात्माओं के लिए रख के चले जाते हैं, और वो है पुराण। ये भागवत पुराण जो है कलयुग की जीवात्माओं के लिए रख के गए। तो हम में से कोई भी व्यक्ति अगर सिंसियर है अपने जीवन में, क्या मुझे थोड़ा तो भगवान का भक्ति करना है या मुझे भी थोड़ा गोलोक वृंदावन या अपने आप को शुद्ध करना है, तो हमारे कलयुग के सारे जो क्या बोलते हैं उससे अनर्थ और अभद्र है उसको निकालने के लिए श्रीमद् भागवतम ही केवल एकमात्र सहारा। तो श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। प्रभुपाद सीधा ये कर रहे हैं तात्पर्य के अंदर। सर्वप्रथम देखिए, जब हमने भागवतम शुरुआत किया था पहले ही अध्याय में हमने देखा था श्रीमद् भागवतम को एक एनालॉजी श्रीमद् भागवतम के लिए बोली थी, एक उदाहरण दिया था श्रीमद् भागवतम। क्या था वो? सारे जितने भी वेदास हैं वो क्या है, एक कल्पतरु के समान है। श्रीमद् भागवतम उसका राइपन फ्रूट, एक पका हुआ फल है। ये पहला एनालॉजी था। अभी कुछ श्लोका पहले हमने और एक एनालॉजी देखी, एक उदाहरण देखा श्रीमद् भागवतम में। वो क्या था? Lord left Bhagavatam before that, when हम जब डिस्कस कर रहे थे कि व्यासदेव ने शुकदेव गोस्वामी अपने पुत्र को श्रीमद् भागवतम बताया, उस टाइम पे और एक उदाहरण दे, क्रीम ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स। मलाई रहती ना, दूध अच्छा रहता है लेकिन दूध का एसेंस मलाई होता है ना, तो उसका एक उदाहरण दिया है। और एक तीसरा उदाहरण आया है यहाँ श्रीमद् भागवतम के लिए, वो क्या है? सूर्य। सूर्य के समान ये श्रीमद् भागवतम है। तो ये तीन उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के लिए अभी तक देखे हुए।
इस भौतिक जगत में आने के बाद हर एक जीवात्मा का जो जीवन होता है बड़ा अंधकार में होता है ना? पूरा, इसीलिए हम बोलते हैं ना ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, अज्ञान के अंधेरे की वजह से इस भौतिक जगत में हम अटके हुए हैं। जैसे मैं शनिवार को हम युद्ध का क्लास ले रहा था, तो वहां पे मैं उनको 3 जो क्लेश है अपने जीवन की वो समझा रहा था, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ठीक है, तो ये पहले भी हमने श्रीमद् भागवत कथा में देखा हुआ है। आदि दैविक का मतलब जो भूकंप, उसके बाद डिजास्टर्स आते हैं, या फिर ये नेचुरल कैलेमिटीज जो आते हैं, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, या फिर वो रोग आ गए बहुत सारे एक साथ में, तो इसको बोलते हैं आदि दैविक। आदि भौतिक मतलब रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, बॉस, ये सब कुछ जो हमें तकलीफ देते हैं उसको आदि भौतिक बोला जाता है। एंड आदि आत्मिक मतलब खुद का शरीर और खुद का मन जो तकलीफ देता है। ठीक है, ये सारी आज मैंने सुना है कि जापान में कुछ तो आया भूकंप और उसकी वजह से सुनामी आने के चांसेस है, चलता रहता है। तो उस समय उन बच्चों को बताते योग सूत्र के हिसाब से 5 कारण होते हैं हमेशा इस भौतिक जगत में, जिनकी वजह से ये सारे के सारे जो तकलीफें हैं हमारे जीवन में आते हैं। और उन 5 तकलीफों में से सबसे पहला जो कारण है तकलीफों का हमारे जीवन में, वो कारण होता है अविद्या। अविद्या के कारण हमारे जीवन में बहुत सफरिंग आती है, बहुत तकलीफें आती है, क्योंकि हम अपना खुद का आइडेंटिटी भूल चुके हैं। बराबर है, वो अज्ञानता का जो तिमिर है, अंधेरा है हमारे जीवन में, उसकी वजह से तकलीफ आती है। और श्रीमद् भागवतम जो है हमारे जीवन में सूर्य के समान आता है, और जब सूर्य आता है तब अंधेरा कहीं नहीं, अंधेरा के बादल छट जाते हैं और एक आशा की किरण जागृत हो जाती है। इस पद्धति से मोटिवेशनल स्पीकर्स हम लोगों को बताते हैं। तो रियल जो आशा की किरण है हमारे जीवन में वो श्रीमद् भागवतम है। तो भगवान गए द्वापर युग के बाद अपने इटर्नल अबोर्ड गोलोक वृंदावन में चले गए, लेकिन हमारे लिए श्रीमद् भागवतम रख गए। तो श्रील प्रभुपाद के कुछ वाक्य यहाँ पे जिनको हम देखते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग चीजें प्रभुपाद ने बोली है। पहला, he descends to reclaim the fallen conditional soul and to re-establish the course of religion which are directly enacted by him. कौन सा श्लोक है ये? अरे आप भी बोला था जस्ट परित्राण। हाँ, या फिर उससे पहले वाला वेरी फेमस डी.आर. चोपड़ा जी के सीरियल्स चालू होने से पहले ये यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, और यही श्लोक का रिकन्फर्मेशन हुआ था जब सारे अवतार भगवान के देखने के बाद आखिरी में बोलते कि कृष्ण ही सब कुछ है। उस टाइम पे भी इस श्लोक का रिकन्फर्मेशन हुआ था। क्या था? एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम प्रणीय। जब भी कभी इंद्र के आर्य मतलब इंद्र के दुश्मन इस भौतिक जगत में आते, आई डोंट नो 4 महीने से इतनी गाड़ियां यहाँ से चलती नहीं। अभी आई डोंट नो व्हाई इतना ट्रैफिक बढ़ गया है इस रोड के ऊपर। एवरीबॉडी टेक्स द ब्लेसिंग एंड मोस्टली टर्न करके जाते। हाँ, You see most of the they are the cause of traffic right now. Rather those na they turn little bit. Oh, that's nice. I also while going rickshaw to my clinic, I take this way now. Okay. So then, only Krishna can establish the principle of religion, or a person who has been empowered by Krishna. ये यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। इस दुनिया में केवल 2 ही व्यक्ति है जो धर्म की संस्थापना कर सकते हैं। कौन है वो? एक भगवान साक्षात जो आते हैं, या भगवान ने जिनको एम्पावर किया हुआ, भगवान ने जिनको वो शक्ति प्रदान की है, उनको शक्त्यावेश व्यक्ति बोला जाता है। वो व्यक्ति केवल धर्म की संस्थापना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भगवान जाने के बाद जब देखा कलयुग में बहुत हिंसा हो रही है, तो भगवान ने बुद्ध अवतार जो लिए, तो शक्त्यावेश अवतार में तो रामानुजाचार्य,
शंकराचार्य, कृष्ण स्वामी, निपकाचार्य, ये सारे भगवान ने एम्पावर किए हुए आचार्य। फिर चैतन्य महाप्रभु आते जो स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण है करके, फिर वो हमें देते क्या है? हरिनाम। हरिनाम देते कि कलयुग में सबसे बड़ा क्या है? हरि का नाम है करके। एक बार जब ये सेतु बांधने का कार्य चल रहा था, तो भगवान रामचंद्र देख रहे थे, ये सारे जो बंदरगण थे उनको आइडिया आया कि भगवान का नाम लिखे। भगवान का नाम लेने से अगर जीवात्मा इस भौतिक जगत से, भवसागर से तर जाता है, तो ये पत्थर क्या चीज है? तो उन्होंने क्या किया? भगवान का नाम उस पत्थर के ऊपर लिखा और उसको समुद्र में डाल दिया। हरि से बड़ा हरि का नाम, तो वो पत्थर जो है समुद्र के ऊपर तैरने लगा। सब लोग खुश होकर कि अरे वाह वाह, देखो हरि के नाम की, भगवान रामचंद्र के नाम की कितनी महिमा है, कितनी ग्लोरीज है कि पत्थर भी तैरने लगा करके। तो दिन में काम कर चालू रहता था और रात को सब बाणर सो जाते थे। एक बार भगवान रामचंद्र के हृदय के अंदर क्यूरियोसिटी जागृत हुई, जिज्ञासा जागृत हो गई कि अगर मेरा नाम जो है वो अगर इस पत्थर को तैरा सकता है, तो अगर मैं पत्थर डालूंगा तो उसको तो तैरना ही होगा। तो बिना किसी को देखे, किसी के दृष्टि में न आते हुए भगवान रामचंद्र समुद्र के किनारे जाते हैं, इधर उधर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है करके, एक पत्थर उठाते हैं और उसको समुद्र में फेंकते हैं। And guess what? सिंक। वो डूब जाता है करके, और भगवान शॉक हो जाते हैं कि डूबा कैसे? मेरा नाम लिखा तो तैर गया, मैंने डाला तो वो डूब गया करके। और एक बड़े वाले पत्थर के पीछे से हनुमान जी हंसने लगते हैं। तो भगवान रामचंद्र को पता चल जाता है कि हनुमान जी जो मुझे देख रहे हैं, तो थोड़े से ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, भगवान थोड़े से शर्मा जाते हैं करके। तो बोलते ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी को पूछते कि मैंने जब डाला तो वो तैरा नहीं, वो डूब गया, मेरे नाम से वो तैर गया। तो हनुमान जी बोलते भगवान जो आपके चरण कमलों में है या फिर आपके हस्त कमलों में है, और जिसको आप खुद ही भवसागर में छोड़ दोगे, उसके लिए दूसरा क्या ही उपाय रहेगा? उसको तो भवसागर में डूबना ही होगा। तो इसीलिए आपका नाम आपसे बड़ा है, क्योंकि आपका नाम लिखने मात्र से भवसागर से आदमी तैर जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कभी कभी हरि से बड़ा हरि का नाम होता है। तो उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन हम लोगों को दिया, वो चले गए, परंतु हरि नाम भगवान लेके चले गए, लेकिन जीवात्माओं के पास जाएंगे कैसे? हमें कल क्या खाया वो याद नहीं रहता है, तो भगवान 500 साल पहले आके हरिनाम देके गए, वो हमें कैसे याद रहेगा? इसलिए भगवान ने और आचार्यों के, अन्य आचार्यों की कृपा से, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, इनकी कृपा की वजह से 1896 नंदोत्सव के दिन एक ऐसे ही भगवान से एम्पावर्ड व्यक्ति इस भौतिक जगत में आए, जिनका नाम है AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर इस हरिनाम का प्रचार और प्रसार किया। अब सबसे महत्वपूर्ण एक बात देखिए, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में सही में धर्म या रिलीजन किस चीज को बोला जाता है, इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या किस प्रकार से, पहले मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, फिर उसके बाद अगर ये मिला तो मैं इसका हिंदी में भी देखता हूँ। मेरे पास हिंदी श्रीमद् भागवतम भी है, तो उसका व्याख्या में हिंदी में भी करता हूँ। भगवान की कृपा से मुझे हिंदी श्रीमद् भागवतम भी ऑनलाइन मिला एक्चुअली, तो अभी मैं फिलहाल खुश हूँ। भले मेरे भौतिक बुद्धि को थोड़ा हिंदी समझना हेवी जाता है, परंतु भक्तों की कृपा से एक दिन आएगा जब मैं अच्छे से हिंदी बोल पाऊंगा। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में
सही धर्म, वास्तविक धर्म क्या होता है उसकी डेफिनेशन है, क्या आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं अगर आपके पास। रियल रिलीजन मीन्स टू नो गॉड, देन to know our relationship with him, then our duties in relation with him, and fourth, know ultimately our destination after living this life. 4 पॉइंट दिए इसके अंदर, हिंदी में इसका अनुवाद इस प्रकार से। वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म का अर्थ है, पहला ईश्वर को जानना, दूसरा ईश्वर के साथ अपने संबंध को जानना, तीसरा ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को जानना, और चौथा जब हमारा भौतिक शरीर छूटे तो हमारा अंतिम गंतव्य स्थान क्या है ये जानना। ये 4 पॉइंट बताए हैं जिसको, इसके ऊपर अगर हम कार्य करते हैं तो उसको धर्म बोला जाता है, उसको वास्तविक धर्म बोला जाता है। तो बहुत बार मैं जब पहली बार आया था तो हमारे एक बहुत अच्छे भक्त है, फिलहाल सेंटर को भी संभालते हैं, उनका नाम है श्रीमान लक्ष्मी नारायण प्रभु। तो मेरे बहुत सीनियर वरिष्ठ गुरु बंधु है, उन्होंने मुझे 4 चीजें बताई थी बात करने में, जब मैं बहुत नया आया। बोलते भगवत गीता और बाकी शास्त्र हमें केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कौन से 4 प्रश्न है? इंग्लिश में, पहला हु एम आई, दूसरा हु इज गॉड, तीसरा व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, एंड चौथा व्हाट आई कैन डू टू रिवाइव दैट रिलेशनशिप। दिस इज व्हाट द पर्पस इज। श्रील प्रभुपाद इज। तो भगवत गीता एसेंस, these are the 4 questions which are answered in Bhagavad Gita and in Srimad Bhagavatam. Okay, कौन कौन से 4 प्रश्न है? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, और उस रिश्ते को वापस रिवाइव करने के लिए, उसको वापस जानने के लिए या उसको इस्टेब्लिश करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और वो जो प्रोसेस है जिससे भगवान का और मेरा रिश्ता हमेशा है, वो कभी टूटा नहीं है, परंतु मैं उसे भूल गया, और उस रिश्ते को वापस याद खुद को दिलाने का जो कार्य है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भक्ति योग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर सब? ठीक, आगे देखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद अभी यहाँ पे थोड़ा डांटेंगे हम लोगों को, ठीक है। The conditioned soul who are entrapped by the material energy hardly know all these principles of life. Most of them are like animals, engaged in eating, sleeping, fearing, and mating. They are mostly engaged in sense enjoyment under the pretension of religiosity. See, pretension of religiosity, knowledge, and salvation. They are still more blind in present age of quarrel or Kali Yuga. In the Kali Yuga, the population is just a royal addition of the animals. It's too much to handle. Seriously, it's too much to handle. Royal addition. मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रेम से चमाट मारी है श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे। My words are so strong. इसका हिंदी में देखिए अनुवाद कैसा, ठीक है। माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते। कौन से सिद्धांत? जो 4 सिद्धांत जो सही वास्तविक धर्म हमें बताते हैं, ठीक है। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे, ठीक है। कौन सा श्लोक है आप मुझे बता सकते हैं? बहुत बार ये श्लोक मैंने बताया।
श्रीमद् महाभारत में आता है इसको। Today I'm behaving like a teacher, asking questions after questions. आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्ययेतात् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये एक्चुअल में क्या है? श्लोक का श्रील प्रभुपाद यहाँ पे अभी हिंदी में बता। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीजें जो है वो प्राणियों में और हम में भी कॉमन है। प्राणी भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी मैथुन करते हैं, हम भी मैथुन करते हैं। वो अपने नाखून से दांतों से लड़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा ब्रह्मोद से लड़ते हैं। ठीक है, बाकी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, एक्टिविटी से। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हम थोड़ा सा ये चार चीजों को रॉयल तरीके से करते हैं, इसलिए वी आर दी रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। आगे देखिए प्रभुपाद, वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पे इंद्रिय तृप्ति करते। क्या है? धर्म के नाम पे भी हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, धर्म का लेबल लगाते परंतु करते इंद्रिय तृप्ति। आज देवी का व्रत है, देवी का व्रत है, तो क्या करेंगे हम? बलि लगा के मस्त बाद में बकरा खाएंगे। ओके, सो वेदों में इसको अलाउ किया, बट कौन से सर्कमस्टेंसेस में अलाउ किया? देश काल पत्र के हिसाब से बहुत सारी चीजें आप देश काल पत्र को साइड में रख देते, लिखा है ना तब तो मैं खाऊंगा, हर रोज खाऊंगा, आज देवी का वार है खाऊंगा, कल इसका वार है वो खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा करके। जैसे मैंने एक बहुत वंडरफुल स्पीकर है जिनके मुख से सुना था कि भक्ति में आने के बाद भी लोग अपने अहंकार को और अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ते नहीं। तो एक बहुत फेमस हिंदी सॉन्ग उन्होंने सुनाया, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, ओ स्वामी तुमसे बढ़कर। यहाँ तक ठीक है, ठीक है, आप गणपति के ऊपर श्रद्धा है, गणपति को आप सर्वोच्च मानते हैं आपके जीवन, तो दैट्स ओके। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। आगे की लाइन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन। मतलब भाई आप तो महान है, लेकिन आपके जितने भी भक्त हैं उसमें महान कौन है? सबसे मैं महान हूँ, तो किसको देखना है आपको सबसे पहले? दिस इज व्हाट ईगो, दिस इज व्हाट अहंकार है ना। तो हम भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में भी अपना ममत्व, अहम भावना जो है ना सबसे पहला लाते हैं, है ना। भगवान सबका उद्धार करो, शुरुआत मुझसे करो। उद्धार सबका करो परंतु शुरुआत मुझसे करो। इसलिए धर्म के जितने भी प्रिंसिपल, आजकल कलयुग में भी लोग धर्म के नाम पे जितना भी करते हैं ना अवडंबर, वो केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण केवल आंख खोल के हम देखेंगे भौतिक जगत में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। हिंदी में मुझे ये नहीं, इंग्लिश में बड़ा पंच आया है मुझे उसमें। We are just a royal editions of animals। तो ना गाड़ी सिंपल भी होती है, टाटा नैनो वगैरह सिंपल छोटी मोटी गाड़ियाँ रहती है जो अपने मिडिल क्लास की होती है, लेकिन रॉयल एडिशन ऑफ कार क्या रहती है? BMW, Jaguar, Rolls Royce। So they are the royal editions of cars। Similarly, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, they are the animals। इंसान, Homo sapiens sapien, they are the royal editions of animals। People are very proud of that। We are social animals। You be the social animal। हाँ, इंसान क्या होता है? एक सामाजिक प्राणी है। आप बोलो भाई प्राणी, हम लोगों को प्राणी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद बहुत कठोर तरीके से, बट बड़े कंपैशन, कठोर शब्दों में परंतु बड़े कंपैशन से, बड़े करुणा से ये वाक्य हमें लिख रहे। कभी कभी सामदाम दंड भेद में दंड देना पड़ता है आपको। श्रील प्रभुपाद के ये सारे वाक्य इसी पद्धति से रहते हैं।
आगे भी देखिए बहुत प्रॉपर्टी बोलते हैं, they can risk, who can risk? We can risk our lives to become a dog or a hawk just after leaving this present body, for they have completely lost sight of ultimate aim of life. हाँ, कल क्या हो, किसने जाना, किसने देखा अगले जन्म में क्या हुआ, ये जन्म मिला है ना, तो खाओ पियो ऐश करो प्रभु जी, क्या करना है इस जिंदगी में, एक ही तो चीज है। जन्म हाँ, इस जन्म में एक ही जन्म मिला है, इसी जन्म में घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और ये कर्मी और कर्मवादी और कर्म मीमांसावादी लोग जो रहते हैं ना, वो इस पद्धति का फिलोसफी बोलते हैं करके, इसको बोलते शॉर्ट साइटेड, इसको बोल ये कहता है ना दूरदृष्टि और लघु दृष्टि, इसको बोलते लघु दृष्टि, शॉर्ट साइटेड। ये हजारों हजारों उदाहरण होने के बावजूद, शास्त्र इतने बार लिखने के बावजूद, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, इतने सारे बड़े बड़े साधु सन्यासी और आचार्य आने के बाद भी उन्होंने क्या किया हुआ है, इतना बताने के बाद भी हम सुनते हैं। बच्चे रहते हैं ना, फैन चलता है, टेबल फैन, और टेबल फैन में जब हम बच्चों को बोलते हैं ये बनता लग गया डल हमने 10 बार बोला, 10 बार बोला। तो दिस रॉयल एडिशन ऑफ कलयुगा पीपल जो है ना, इनका प्रॉब्लम ये लोग क्या करते हैं, केवल अपने एक्सपीरियंस से समझते हैं, परंतु एक्सपीरियंस इस पद्धति का कि ह्यूमन लाइफ एक बार निकल जाती है और जब सामने यमदंड दिखाई देता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। उस एक्सपीरियंस के बाद पश्चाताप हुआ तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो लेके चले जाने वाले हैं आपको। तो बोलते हैं हिंदी में कहावत है, अब पछतावा क्या जब चिड़िया चुग गई थी। उसको दो पद्धति से समझ सकते हैं। कुछ ऐसे मिस्टेक्स होती है हमारी जो एक बार हो गई तो उसके ऊपर कितना भी आपने पश्चाताप किया तो भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला है जिंदगी। आपको जिंदगी भर उसी पश्चाताप के साथ आगे चलना। तो ये पश्चाताप कैसा है? इंसान का शरीर मिला लाखों करोड़ों जन्मों के बाद ना, मनुष्य जन्म हैलजा जन्म सार्थक करी कर बड़ा उपकार, तो उसको सार्थक करना है भगवत भक्ति में लगा के। परंतु उसको जब दुर्लक्षित कर देते, उसको निग्लेक्ट कर देते हम लोग, तो फिर उसके बाद शरीर छूटता है तो पश्चाताप किया तो भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये हमें इस साइकिल में फिर से जाना ही पड़ता है। परंतु कुछ ऐसी मिस्टेक्स है कि जिसके ऊपर हमें प्रायश्चित्त करना अच्छा है। इसका मतलब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब आप क्या फायदा, आपका हो गया जो होना था। इसका मतलब ये नहीं कि प्रायश्चित्त नहीं करना है, वो अच्छा है, अटोनमेंट इज गुड। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं रियल अटोनमेंट मतलब क्या होता है, कौन से सेक्शन में आता है वो मैं भूल गया है शायद से। प्रभुपाद उसमें बोलते हैं रियल अटोनमेंट मतलब क्या, रिवाइविंग अवर डॉर्मेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस। सही में जीवन में अपनी गलती की हुई गलतियों का प्रायश्चित्त अगर किसी को अपने जीवन में करना है तो उसको अपना जो कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम अंदर सुप्त अवस्था में है उसको जागृत करना, वो सही में प्रायश्चित्त करने के साथ। और ये केवल भक्ति योग से होता है। और इस भक्ति योग का जितना भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, श्रीमद् भागवतम में दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम मद्गणम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम, ये सारा जो भक्ति योग का एसेंस है, सारांश है, वो श्रीमद् भागवतम में दिया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हमने एक पिछले बार भागवत कक्षा में इसके ऊपर चर्चा की थी कि व्यासदेव भगवान के लेखक अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान का लेख्य अवतार है, लेख्य अवतार जो लिखा हुआ अवतार है। और भगवान की जो लीलाएं श्रीमद् भागवतम में लिखी हुई है वो लीलाएं भी भगवान से अभिन्न है। तो एक साथ 3 अवतार थे भगवान के वहां। तो श्रीमद् भागवतम ये भगवान से अभिन्न है,
नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। भगवान का नाम, भगवान का लीला, भगवान का गुण जो है वो भगवान से अभिन्न होता है और उनका कोई भी स्मरण दिन रात अगर करता है तो उसका चेतो दर्पण मार्जन, उसके अनर्थों से उसको फ्रीडम 100% मिलेगा ही मिलेगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। किसी को अपने जीवन में अपने अनर्थ, काम क्रोध में तकलीफ होता है ना, क्रोध आता है तो हमें तकलीफ होता है, बीपी हमारा ही बढ़ता है, हम ही अपने परिजनों को गालियां देते हैं करके, और जितने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं वो भी हम खराब कर देते हैं उससे। ठीक है, काम वासना हृदय के अंदर है, कितना भी अच्छा व्यक्ति सामने से जाए, बेचारा नॉर्मली जा रहा है, फिर भी उसको देख के हमारी काम वासना ये हो जाती है कभी। साधारण सा कुछ राक्षस प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि वो राक्षसों का जब जन्म हुआ था उन्होंने ट्वाइलाइट देखी, संध्या, तो संध्या देख के उनका काम वासना जागृत हो गया। किसका होता है ऐसा? परंतु अधिक काम वासना मतलब राक्षस प्रवृत्ति आपके। ठीक है, तो काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, बेचारा पड़ोसी बहुत अच्छा है परंतु उसका जब अच्छे से चलता है ऐश्वर्य, अंदर कुछ होता है, कुछ होता है प्रभु जी आप नहीं समझोगे, है ना? इस पद्धति को, और उसका तकलीफ किसको होता है? सामने वाले को, खुद को होता है। तो अगर हमें इन अनर्थों से बाहर निकलना है तो उसके लिए क्या है? नित्यम भागवत सेवया। और उसमें जितने भी श्लोक है वो उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक मतलब कृष्ण का नाम है। और श्रीमद् भागवतम के सारे श्लोक भी कैसे हैं? उत्तम है। और अगर किसको भगवान के प्रति निष्ठा चाहिए, भगवान के चरण कमलों के प्रति, भगवान के हरिनाम के प्रति निष्ठा चाहिए, तो उसके लिए भी श्रीमद् भागवतम पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि नित्यम भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। उस व्यक्ति को जो भक्ति मिलेगा वो निष्ठा वाली भक्ति मिलेगी अगर वो नित्यम भागवत से सेवा करता है। क्योंकि कृष्ण ने केवल कलयुग के जीवात्मा के लिए ही ये श्रीमद् भागवतम का कंपाइलेशन, संरचना की हुई है करके। और सोचिए ये श्रीमद् भागवतम आने के लिए किसी एक महान व्यक्ति को अपना जान दांव पे लगाना। परीक्षित महाराज को श्रृंगी का शाप लेके 7 दिन में अपना शरीर छोड़ना पड़ा, तभी तो जाकर श्रीमद् भागवतम आया है। अगर हम अपने जीवन में भक्ति कर रहे हैं और भक्ति कर पा रहे हैं अच्छे से, तो हमारे भक्ति का बिल्डिंग का फाउंडेशन जो है किसी भक्त का सैक्रिफाइस और किसी भक्त का त्याग होता है। किसी और भक्त के त्याग के ऊपर ही हम हमारे भक्ति का बिल्डिंग बनाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में आने वाले हर एक भक्त के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पे अल्प विराम देंगे। अगली बार मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह, अगली बार तब तक के लिए हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, तायोर प्रेमानंदे।